Good morning everyone. Student, today we are going to start chapter number 1, Androcles and the Lion. Androcles is a name of a slave. Student, this is the very famous story and you can see on YouTube also. In this story student we will learn how we should be grateful to others for their help. हमें एक दूसरे के प्रति grateful किस तरह से रहना चाहिए ये इस स्टोरी में से हम सीखेंगे आज. So now let's start. Once there was a poor slave in Rome whose name was Androcles. This is the story of Rome, and there was a slave whose name was Androcles. His master was a cruel man. उसका जो मास्टर था वो क्रूअल था, अनकाइंड था. He was so unkind to him that at last Androcles ran away from his master's home. वो इतना अनकाइंड था कि एक दिन एंड्रोक्लिस उसके तंग आके अपने मास्टर के यहाँ से भाग जाता है. He hid in a forest for many days. वो बहुत टाइम तक फॉरेस्ट में छुप के रहता है. There was no food to be found. उसको कुछ खाने को नहीं मिलता. He grew so weak and sick that he thought he should die. वो कुछ खाने की वजह से, कुछ नहीं खाने की वजह से वो इतना वीक एंड सिक बीमार हो जाता है कि उसको लगता है कि वो अब मर जाएगा. One day he took shelter in a cave. Soon he was fast asleep. एक दिन वो केव में जाता है और वहां पे वो सो जाता है. Suddenly a great noise woke him up. अचानक से उसको एक आवाज आती है. A lion had come into the cave and was roaring loudly. एक लायन केव में आता है और वो रोर करने लगता है. Androcles was very much afraid, for he felt sure that the beast would kill him. एंड्रोक्लिस इतना डर जाता है कि उसको लगता है कि ये एनिमल लायन जो है आज उसको मार देगा. However, he saw that the lion was not angry, but that he limped as though his foot hurt him. But उसने देखा कि लायन एंग्री नहीं था, बट उसके फुट में कुछ लगा हुआ था, इसकी वजह से वो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा था. Then Androcles grew so bold that he took hold of the lion's lame paw to see what the matter was. और एंड्रोक्लिस हिम्मत करके जाता है और लायन के पो को, फुट देखने की कोशिश करता है कि उसके फुट में क्या लगा हुआ है. The lion stood quite still and rubbed his head against the man's shoulder. लायन जो था वो एकदम क्वाइटली खड़ा रह जाता है और उसका जो हेड था वो एंड्रोक्लिस के शोल्डर पे रब करने लगता है. Androcles lifted the paw from the ground and saw that it was a long sharp thorn which hurt the lion so much. और एंड्रोक्लिस ने देखा कि उसके पो में, उसके फुट में एक शार्प थॉर्न था, मीन्स एक कांटा लगा हुआ था जो लायन को हर्ट कर रहा था. He took the end of the thorn in his finger. Then he gave a strong quick pull and out it came. वो उस थॉर्न को, उस कांटे को अपने फिंगर्स से पकड़ता है और उसको जोर से खींचता है और उसको बाहर निकाल देता है. The lion was full of joy. इसकी वजह से लायन खुश हो जाता है. He jumped about like a dog and licked the hands and feet of his new friend. वो इतना खुश हो जाता है कि डॉग की तरह जंप करने लगता है और एंड्रोक्लिस के फीट और हैंड्स को लिक करने लगता है, मीन्स उसको पैम्पर करने लगता है. Androcles was not at all afraid of the lion after this. और इस इवेंट के बाद एंड्रोक्लिस था वो अब लायन से डरता नहीं था. For a long time the lion brought food for Androcles every day. और लॉन्ग टाइम तक एंड्रोक्लिस के लिए लायन जो था वो फूड लेके आता था. The two become such good friends that Androcles found his new life a very happy one. वो दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स हो गए थे कि एंड्रोक्लिस को अपनी ये न्यू लाइफ बहुत ही अच्छी लगने लगी थी, मीन्स वो बहुत हैप्पी होने लगा था. One day some soldiers who were passing through the forest found Androcles in the cave. एक दिन वहाँ से रोम के जो सोल्जर्स है वो वहाँ से निकलते हैं और एंड्रोक्लिस को वहाँ देख लेते. They knew who he was and so took him back to Rome. और फिर वो एंड्रोक्लिस को पहचान लेते और उसको रोम में वापस ले जाते. It was the law at that time that every slave who ran away from his master should be made to fight a hungry lion. और उस टाइम में रोम में ऐसी पनिशमेंट थी कि कोई अगर स्लेव अपने मास्टर के यहाँ से भाग जाए तो उसको एक हंग्री लायन के साथ फाइट करनी पड़ती थी. So a fierce lion was shut up for a while without food and a time was set for the fight. और उसके लिए एक फियर्स मीन्स एक वायोलेंट जो होता है, ऐसे एक लायन को बहुत टाइम तक भूखे रखा जाता है और फिर फाइट का टाइम और डे सेट किया जाता है. When the day came, thousands of people crowded to see the sport. और फिर वो जब डे आता है तो बहुत सारे लोग देखने, ये स्पोर्ट देखने के लिए, फाइट देखने के लिए आते हैं.
They went to such places at that time very much as people nowadays go to see a movie or a game of cricket. और उस टाइम पे लोग एंटरटेनमेंट के लिए ऐसी फाइट देखने जाते थे जैसे अभी हम लोग मूवी या कोई गेम देखने जाते हैं, उस टाइम पे लोग ऐसी फाइट देखने जाते थे. The door opened and poor Androcles was brought in. डोर ओपन किया गया और एंड्रोक्लिस अंदर आया. He was almost dead with fear because the roars of the lion could be heard. वो इतना डर गया था कि क्योंकि उसने वो लायन की रोर सुनी थी. He took up and saw that there was no pity in thousands of faces around him. उसने देखा कि जो लोग थे, जो देखने के लिए जो पीपल आए थे, उनके फेस पे कोई दया नहीं थी क्योंकि वो सारे तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आए थे. उनको फेस पे कोई दया नहीं थी कि देखो एक मैन अभी मर जाएगा, ऐसी कोई उनके फेस पे दया नहीं थी. Then the hungry lion rushed in. फिर एक hungry lion आता है. With a single bound he reached the poor slave. और फिर उस slave के बाजू में आता है. Androcles gave a great cry, not of fear but of gladness. वो रोने लगता है but डर के मारे नहीं, खुशी के मारे. It was his old friend, the lion of the cave. उसने देखा कि ये तो उसका केव वाला फ्रेंड है. The people who had expected to see the man killed by the lion were filled with wonder. और जो लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि ये मैन एंड्रोक्लिस अभी मर जाएगा, लायन उसको अभी मार देगा, वो सरप्राइज हो गए. They saw Androcles put his arm around the lion's neck. उसने देखा कि एंड्रोक्लिस ने अपना आर्म जो था वो लायन के नेक के अराउंड रखा. They saw the lion lie down at his feet and lick them lovingly. उसने देखा कि लायन जो था वो एंड्रोक्लिस के फीट के बाजू में बैठ गया और उसको पैम्पर करने लगा. They could not understand what it all meant. वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली क्या हो रहा है. After a while they asked Androcles to tell them about it. और फिर लोगों ने एंड्रोक्लिस को पूछा कि क्या हो रहा है. So he stood up before them and with his arm around the lion's neck told them how he and the beast had lived together in the cave. फिर एंड्रोक्लिस उठा और उसने लायन के नेक के अराउंड में अपना आर्म रखा और फिर लोगों को केव में जो एक दूसरे को किस तरह से मिले थे और एक दूसरे किस तरह से फ्रेंड्स बने थे वो स्टोरी लोगों को बताई. Androcles said, I am a man, but no man has ever befriended me. This poor lion alone has been kind to me and we love each other as brothers. एंड्रोक्लिस ने बताया कि ये एक अकेला लायन है जो मेरे प्रति काइंडली बिहेव करता है और हम एक दूसरे को ब्रदर जैसा लव करते हैं. The people were not so bad that they would be cruel to the poor slave now. अब लोग भी इतने क्रूअल नहीं थे, इतने बैड नहीं थे कि अब वो स्लेव के प्रति क्रूअली बिहेव करे. Live and be free. They cried, live and be free. लोग चिल्लाने लगे कि उनको छोड़ दो और जीने दो. Others cried, let the lion go free too. Give both of them their freedom. लायन को भी जाने दो और उसको भी दोनों को फ्रीडम दो. And so Androcles was set free and the lion was given to him for his own. और फिर एंड्रोक्लिस को छोड़ दिया गया और लायन को भी उसको सौंप दिया गया. They lived together in Rome for many days, for many years. और फिर वो दोनों रोम में बहुत सालों तक साथ में रहे. तो स्टूडेंट, इन दिस स्टोरी वी लर्न हाउ वी शुड बी ग्रेटफुल टू ईच अदर. हमें एक दूसरे के प्रति किस तरह से ग्रेटफुल रहना चाहिए, किस तरह से एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ये स्टोरी में से हमने मोरल सीखा.